ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی کرنا مسلمان پر واجب ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے قربانی کے وجوب پر چند دلائل پیش کریں گے۔ ایک قرآن پاک کی آیت پیش کریں گے اور دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کریں گے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے دو حکم دیے ہیں، ایک نماز کا اور دوسرا قربانی کا۔ ہم ذرا مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جو انحر کا لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے مشہور صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد، آپ نے فرمایا انحر سے مراد ہے اذبح یوم النحر، یعنی نحر کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنا مراد ہے۔ نمبر دو، حضرت امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصلی وتنحر، کہ تو نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انحر سے مراد ہے اذبح، یعنی جانور کو ذبح کر۔ یہ اقوال آپ کو تفسیر ابن جریر طبری میں مل جائیں گے۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر فرماتے ہیں والصحیح القول الاول، اور صحیح پہلا قول ہے ان المراد بالنحر ذبح المناسک، کہ یہاں پر نحر سے مراد قربانیوں کو ذبح کرنا ہے۔ یعنی وہ جو بعض لوگ اس سے مراد لیتے ہیں سینہ پر ہاتھ باندھنا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نحر سے مراد ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ اب انحر کا مطلب مفہوم میں پتہ چل گیا کہ اس سے مراد ہے قربانی کے دن جانوروں کو ذبح کرنا۔ اب انحر امر ہے اور مطلق امر کا مقتضا وجوب ہوتا ہے، لہذا اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر دو سنیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وجد ساعة فلم یذبح فلا یقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استطاعت پائے، یعنی قربانی کرنے کی طاقت ہو، پھر بھی قربانی کا ارادہ نہ کرے، فلا یقربن، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 7565۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے کہ کتنی سخت وعید ہے اس شخص کے لیے جو استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ قربانی نہ کرنے والا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی وہ بندہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے۔ آپ غور کریں، اور فلا یقربن، یہ سادہ نہیں کا صیغہ نہیں ہے، بلکہ یہ نہیں ثقیلہ کا صیغہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نہیں ثقیلہ ہو تو معنی کے اندر کتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے، نہیں کتنی سخت ہوتی ہے۔ یعنی قربانی نہ کرنے والا بندہ ہماری عیدگاہ کے ہرگز قریب نہ پھٹکے۔ اور اس طرح کی وعید استحباب کے ترک پر نہیں ہوتی، یعنی مستحب کام چھوڑ دی اور اتنی سخت وعید آ جائے، اس طرح کی وعید وجوب کے ترک پر ہی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، امام ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 3، علامہ ابن حجر عسقلانی کے استاد امام ابن الملقن نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی کتاب دیکھیں التوضیح، جو صحیح بخاری کی شرح ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، الجامع الصغیر دیکھیں۔ اور مشہور غیر مقلد عالم علامہ ناصر الدین البانی صاحب بھی اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح الجامع الصغیر
रिवायत नंबर 2210। इस रिवायत पर कुछ लोग एतराज़ करते हैं। पहला एतराज़ उन लोगों का ये है कि इसमें एक रावी है अब्दुल्ला बिन अय्याश जो कि ज़ईफ़ है। इसका जवाब सुनिए कि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक अब्दुल्ला बिन अय्याश अल कितबानी सिका सदूक रावी है। नंबर 1, हज़रत अल्लामा ज़हाबी लिखते हैं इहतज्ज बिही मुस्लिमुन कि इसकी रिवायत से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हुज्जत पकड़ते हैं। तारीख़ इस्लाम ज़हाबी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 425, सही मुस्लिम के अंदर इसकी रिवायत मौजूद है। नंबर 2, इमाम इब्ने खलफून फरमाते हैं ला बअस बिही, इसकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। इकमाल तहज़ीबिल कमालिल मुग़ल्ताई जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 109। नंबर 3, मुहद्दिस इब्ने हिब्बान ने इस रावी को किताबुस सिकात में ज़िक्र किया है। किताबुस सिकात जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 51। नंबर 4, अल्लामा शमसुद्दीन ज़हबी फरमाते हैं सालिहुल हदीसी अल-मुग़नी फ़ी ज़ुअफ़ा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 350, और उन्होंने अब्दुल्ला बिन अय्याश की इस रिवायत को सही करार दिया है। इससे भी मालूम होता है कि अल्लामा ज़हबी के नज़दीक ये रावी सिका है। नंबर 5, मुहद्दिस हाकिम ने इसकी कई रिवायात को सही करार दिया है। मुस्तदरिक हाकिम हदीस नंबर 7565। नंबर 6, मुहद्दिस अबू अवाना ने अपनी सही में इससे रिवायत ली है जो कि इस बात की दलील है कि उनके नज़दीक ये रावी सिका सदूक है। मुस्तखरिज अबी अवाना हदीस नंबर 3151। नंबर 7, अल्लामा इब्नुल कैसरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रावी सिका है। ज़ख़ीरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2388। नंबर 8, अल्लामा इब्नुल मुलक्किन फरमाते हैं हुआ मिन रिजाल मुस्लिम, ये मुस्लिम के रावियों में से है और उन्होंने इसका दिफा भी किया है। अत-तौज़ीह जिल्द नंबर 26 सफ़ा नंबर 570। नंबर 9, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह उसकी एक रिवायत के मुतल्लिक़ लिखते हैं रिजालहु सिकात, उनमें एक ये भी है, लिहाजा उनके नज़दीक ये रावी सिका है। फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 3, अल्लामा ज़ुरक़ानी फरमाते हैं कि यह रावी सिका है। शरहुल ज़ुरक़ानी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 120। ये 10 मुहद्दिसीन व शारहीन के हवालाजात हमने आपके सामने पेश किए हैं जिन्होंने इस रावी की तौसीक़ की है, इसकी रिवायत की तस्हीह की है। मालूम हुआ कि जमहूर के नज़दीक ये रावी सिका और सदूक है और बाद मुहद्दिसीन की इस पर जरा का कोई एतबार नहीं होगा। और दूसरी बात सुनिए कि अब्दुल्ला बिन अय्याश इसमें मुनफरिद नहीं है बल्कि उबैदुल्ला बिन जाफ़र ने उसकी मुताबियत की है। सुनन दारकुतनी रिवायत नंबर 4762। ये था पहला एतराज़ जिसको हमने दूर कर दिया। अब ज़रा सुनिए दूसरा एतराज़। बाद लोग कहते हैं कि असल में ये रिवायत मौकूफ़ है, मरफू नहीं है। इसका पहला जवाब सुनिए। मुहद्दिस हाकिम इस रिवायत को नकल करने के बाद इसकी एक और सनद नकल की, फिर फरमाते हैं औ कफ़ाहू अब्दुल्ला बिन वहबिन कि इसको मौकूफ़ बयान किया है अब्दुल्ला बिन वहब ने। इल्ला अन्न ज़ियादत मिन सिक़ाति मक़बूलतुन, मगर सिका की ज़ियादत मकबूल होगी। यानी अब्दुल्ला बिन वहब इसको मौकूफ़ बयान करते हैं और अबू अब्दुर्रहमान मुकरी इसको मरफू बयान करते हैं और सिका की ज़ियादत मकबूल होती है, लिहाजा यहाँ पर अबू अब्दुर्रहमान अल मुकरी की मरफू वाली ज़ियादत मकबूल होगी। सही ये है कि ये रिवायत मरफू है। और साथ उन्होंने ये भी कहा व अबू अब्दुर्रहमान अल मुकरी फ़ौक़ सिका, कि अबू अब्दुर्रहमान मुकरी सिर्फ सिका नहीं बल्कि सिका से की ऊपर के दर्जे का रावी है। मुस्तदरिक हाकिम हदीस नंबर 7566। मालूम हुआ कि मुहद्दिस हाकिम के नज़दीक ये रिवायत मरफू है और इसमें सिका की ज़ियादत है जो बिल्कुल मकबूल है। नंबर 2, मुहद्दिस इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत के मरफू को ही सही करार दिया है। यानी जो इमाम हाकिम ने मरफू रिवायत बयान की थी उन्होंने इसको सही करार दिया है। नंबर 3, इमाम इब्नुल मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मरफू होने को तरजीह दी है। उनकी बुखारी की शरह देखिए अत-तौज़ीह। नंबर 4, इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि इस रिवायत को इसको बयान किया है ज़ैद बिन हुबाब ने, यहया बिन सईद अत्तार ने अब्दुल्ला बिन अय्याश से, उसने
आरज से, उसने अबू हुरैरा से और उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इससे मालूम होता है कि इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी इस रिवायत का मरफू होना ही राजे है, और उन्होंने हाकिम वाली सनद के अलावा एक और सनद से इस रिवायत को मरफू बयान किया है और उस पर किसी तरह की कोई जरा नहीं की। जो हमने इमाम दारकुतनी का कौल पेश किया है वो है अल-इलल लिद-दारकुतनी, जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 304। दूसरी बात सुनिए कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इस रिवायत को मौकूफ़ तस्लीम कर भी लें, तब भी ये इस तरह की बात है जो क़ियास से नहीं कही जा सकती, और गैर मुदरक बिल क़ियास कौल मरफू हदीस के हुक्म में होता है, लिहाजा तब भी हुक्मन ये रिवायत मरफू ठहरेगी और इससे इस्तिदलाल बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस रिवायत से मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी न करने वाला शख्स इंतहाई बुरा है कि उसको ईदगाह के करीब भी आने की इजाज़त नहीं देते। दलील नंबर 3 सुनिए, ज़बरदस्त दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि चंद लोगों ने ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही कुर्बानी कर ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलाती, कि जिस शख्स ने नमाज पढ़ने से पहले ही जानवर को ज़बह कर लिया है, फ़लयज़बह मकानहा उख़रा, उसको चाहिए कि उसकी जगह एक और जानवर ज़बह करे। और एक दूसरी रिवायत में है फ़लयुइद के अल्फाज, सही बुखारी हदीस नंबर 5500। अब इस रिवायत पर गौर कीजिए ज़रा। ईद से पहले कुछ लोगों ने कुर्बानी कर ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि जो तुमने कुर्बानी की इसका कोई एतबार नहीं, बल्कि इसकी जगह कोई और जानवर ज़बह करो। हमारा इस्तिदलाल और सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है बल्कि मुस्तहब है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी क़ज़ा का हुक्म क्यों दिया? क्या इस तरह के मुस्तहब अमल के छोड़ने पर भी क़ज़ा का हुक्म दिया जाता है? बिल्कुल नहीं दिया जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको इआदा का हुक्म देना, उनको क़ज़ा का हुक्म देना, या जो भी आप इसको नाम दे लें, दोबारा कुर्बानी करने का हुक्म देना, इस बात की वाज़ेह दलील है कि कुर्बानी का करना वाजिब है। लिहाजा जितने मुसलमानों के अंदर भी इस्तिताअत है उनको कुर्बानी ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह जल्ल शानहू का इंतहाई पसंदीदा अमल है और बहुत अजर व सवाब का काम है।